Okay, so please note down question number 3 and then we'll move on to the solution. It is based on factorization method, but it's a cubic equation. Chalo, let's start solving this. Now, this kind of question can be asked for 3 to 4 marks. Depends. Because solution, let capital L equal to, ये question लिख लो आप, limit x is tending towards -2 x cube plus x square plus 4x plus 12 upon okay. Now let us first cross check whether is it 0 by 0 form. तो जल्दी से देख लेते हैं x का वैल्यू -2 है तो -2 क्यूब इज -8 -8 plus 2 is -6 -6 plus 6 0 yes डिनोमिनेटर तो 0 हो रहा है न्यूमरेटर चेक कर लेते हैं -2 क्यूब इज -8 -8 plus 4 -8 plus 4 is -4 -4 and -8 is -12 -12 and +12 yes it is also 0 तो ये 0 by 0 फॉर्म वाला प्रॉब्लम है yes it is. So now what we are supposed to do, we are supposed to factorize. ठीक है ना, फैक्टराइज करना है हमें न्यूमरेटर को फैक्टराइज करना है डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है बट इट्स अ क्यूबिक इक्वेशन तो लेट्स कंसिडर द न्यूमरेटर. तो लिखो आप कंसिडर, let's write down the numerator is x cube plus x square plus 4x plus 12. इसके फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं क्वेश्चन मार्क. Okay, now please stop writing and try to understand the procedure. न्यूमरेटर मैं करता हूं डिनोमिनेटर हम साथ में करेंगे. So just give me time of 10 minutes to write and explain. You must have already done this. Okay, let's check. Okay, now ये quadratic equation नहीं है तो हम directly factorize नहीं कर सकते. Cubic equation, majority of the cubic equations are to be done by a method which we have learned in lower standards and that is called as synthetic division method. ठीक है, I don't know how many of you remember but doesn't matter. Let's check क्योंकि ये method हमें अभी भी काम आने वाला है. Okay, now while using synthetic division, please pay attention completely right now. अभी लिखो मत आप. What we are supposed to do, we are supposed to write down the equation के coefficients लिखने हैं. तो x cube का coefficient is 1, x square का coefficient is 1, x का coefficient is 4 and the constant term is 12. Okay, check. This is how we bifurcate to find out the factors. ठीक है ना. अब यहाँ पे जो नंबर लिखना है, यहाँ पे जो नंबर लिखना है that is by trial and error basis. ठीक है ना. The number that is to be written over here, that is by trial and error basis. ठीक है, that is +1 -1 +2 -2 ऐसा करके हम करते थे if you recollect. ठीक है ना, +1 डालने का फिर उसको सॉल्व करने का, वर्क हुआ तो ठीक है अदरवाइज यू गो टू -1 +2 -2. ठीक है, बट अभी यहाँ पे ट्रायल एंड एरर बेसिस करने की जरूरत नहीं है. नाउ लिमिट में x इज टेंडिंग टुवर्ड्स -2 ना, so without thinking much हम यहाँ पे -2 लिखेंगे. Please pay attention. Now we carry forward this number as it is over here. ये जो भी नंबर है यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा. Now these two numbers are to be multiplied. So -2 into 1 is -2. ठीक है. Okay. So now I repeat, it's not to be done by trial and error basis. यहाँ पे जो नंबर है वो यहाँ पे लिखना है हमें. So I repeat, this number carry forward as it is over here, written as it is over here. -2 into 1 is -2. Now we'll be adding these two numbers. So 1 plus of -2 is -1. Now we'll do this into this. -2 into -1 is +2. Then we'll add them. 4 plus 2
6. Now we'll multiply them. So 6 into -2 is -12, and +12 and -12 is 0. So now what should happen when we are using synthetic division? ये जो लास्ट वाला बॉक्स है ना, इसमें 0 आना कंपलसरी है. Check. Is this procedure understood to everyone? Just give me the clearance once. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Very good. तो इस मेथड को हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड बोलते हैं स्टूडेंट्स. ओके. Now see what is to be done. Now we are supposed to write down the factors. Give me time. I will write down the factors. फिर आप ये पूरा प्रोसीजर लिख लेना. Okay. Now when we are writing down the factors, किसके factors लिखना है हमें? We are supposed to write down the factors for x cube plus x square plus 4x plus 12 के factors लिखने हैं. ठीक है. So I just draw these two brackets. Factors I will write it down. अब ये जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट है ना, यहाँ पे x लिखने का. Since equation is in term of x, you have to write down x. I am telling you the shortcut. पूरा डिटेल प्रोसीजर जो आपने सीखा है वो मैंने बता रहा हूँ. शॉर्टकट में बता रहा हूँ मैं कैसे याद रखना है. x लिखा, माइनस साइन डालने का. आफ्टर x दिस माइनस साइन इज बाय डिफॉल्ट. नाउ व्हाट इज टू बी डन? ये जो नंबर है ना यहाँ पे -2, वो ये वाले ब्रैकेट में डालने का आपको. तो x माइनस फर्स्ट वाला ब्रैकेट, x माइनस दिस माइनस इज बाय डिफॉल्ट. ये -2 में ये वाले ब्रैकेट में डालूंगा तो माइनस ऑफ माइनस दिस ब्रैकेट विल बिकम x + 2 हो जाएगा. मतलब अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, और वहां पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा. दैट इज हाउ यू रिमेम्बर. ओके. नाउ आफ्टर दिस, अब जो सेकेंड वाला ब्रैकेट है ना, उसको हमें फिल करना है. वी हैव टू फिल अप दैट ब्रैकेट. नाउ पे अटेंशन. 0 के बाद short form for constant term I have written. So where were we? This is constant term. This is term containing x, and this is term containing x square t into. तो 0 के बाद ये कांस्टेंट वाला टर्म होता है, ये टर्म कंटेनिंग x होता है, और ये टर्म कंटेनिंग x स्क्वायर होता है. ठीक है. नाउ t स्टैंड फॉर टर्म, तो t के जगह पे 1 डालने का. t के जगह पे 1 डालने का, तो 1 into x स्क्वायर इज x स्क्वायर. अभी t के जगह पे -1 डालने का, तो दिस विल बी -x + 6. तो जो सेकेंड वाला ब्रैकेट है वहां पे, दिस सेकेंड ब्रैकेट, नाउ दिस इज गोइंग टू बिकम व्हाट? चेक. 1 into x square is x square, -1 into x is -x, plus this is constant term, that is term independent of x. So these are the factors of this cubic equation. Okay, I'll repeat the procedure. ध्यान से देख लो वापस एक बार. We have considered the numerator. डायरेक्ट फैक्टराइज नहीं कर सकते तो सिंथेटिक डिवीजन का हेल्प लिया. वी आर राइटिंग डाउन द कोएफिशिएंट्स ऑफ द इक्वेशन. ठीक है ना, टर्म्स के कोएफिशिएंट लिख रहे हैं. देन वी राइट डाउन दिस नंबर ओवर हियर. कैरी फॉरवर्ड, फॉलो दिस प्रोसीजर, एंड ये बॉक्स में 0 मिलना चाहिए. अब ये 0 मिला मतलब हाँ ये फैक्टर्स और ये वैल्यूज करेक्ट है. अगर ये कुछ भी इधर गड़बड़ हो गया ना तो इधर 0 नहीं मिलेगा आपको. नाउ हाउ टू राइट डाउन द फैक्टर्स? पहले ब्रैकेट में x, माइनस ऑफ माइनस तो x + 2 हो जाएगा. दिस विल बी x स्क्वायर -x + 6. Okay, now just give me the clearance. Is this factorization understood to everyone? Yes, sir. Okay, so please write down in your notebook students. ये लिख लो आप. Then we'll move to the denominator वाला part. ये न्यूमरेटर के फैक्टर्स निकाले हमने. Please write down. चलो, now let us solve for the denominator students. तो लिखो और now consider denominator लिख लेते हैं. What is the denominator? It is x cube minus 3x plus 2. इसके फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं. Obviously this is also to be done by synthetic division. ऑप्शन नहीं है हमारे पास.
हमारे पास both of us don't have option. Okay, so now we write down the coefficients. तो अब देखो x क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है. अब देखो यहाँ से x स्क्वायर है ही नहीं, x स्क्वायर गायब है, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट शुड बी रिटर्न 0. x क्यूब का कोएफिशिएंट 1, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0, x का कोएफिशिएंट -3 एंड कांस्टेंट टर्म इज 2. एवरीथिंग शुड बी रिटर्न. x स्क्वायर नहीं है तो 0 लिखना पड़ेगा. बाय चांस अगर x का टर्म नहीं होता तो x के टर्म के जगह पे 0 आएगा. कांस्टेंट नहीं होता तो कांस्टेंट के जगह पे 0 आएगा. इट्स कंपलसरी. ठीक है. नाउ लेट्स डू इट. अभी सोचना नहीं है यहाँ पे +1 -1 क्या लिखना है. -2 है ना, तो यहाँ पे भी -2 लिखो. कंपलसरी. -2 है, -2. 3 होता तो उधर भी 3 आता. व्हाटएवर नंबर इज दैट नंबर. चलो नाउ लेट्स कैरी फॉरवर्ड दिस नंबर. नाउ इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस कि ये नंबर दोनों जगह पे 1 है. ये कोई दूसरा नंबर भी हो सकता है. तो जस्ट कैरी फॉरवर्ड. -2 into 1, -2. Add them, multiply them, add them, multiply them, add them. देखो 0 मिला बॉक्स में. ठीक है. चलो नाउ लेट अस राइट डाउन द फैक्टर्स. इसके फैक्टर्स लिखते हैं. x क्यूब -3x प्लस 2 के फैक्टर्स लिखते हैं. ओके, तो चलो someone tell me the first bracket if you can. x plus 2. Very good. x plus 2. Okay, very good. Now can someone else answer me the second bracket? मतलब क्या लिखूं मैं second bracket में? If you can. x square minus 2x plus 1. Very good, Keshav. Absolutely. It is x square minus 2x plus 1. ठीक है. कैसे आप देखो, this is constant term, this is term containing x, or you can say term multiplied by x and term multiplied by x square. Next term multiplied by x cube. तो क्यूब वाला है नहीं, तो t के जगह पे 1 into x square is x square. t के जगह पे -2 into x is -2x plus 1. तो ये फैक्टर्स है इस क्यूबिक इक्वेशन के. Now next problem I will not teach you this synthetic division. आपको खुद को करना पड़ेगा. सेम प्रोसीजर. अगर रूट भी रहेगा, इवन दो इफ देयर इज अ रूट वाला टर्म, तो भी यही प्रोसीजर अप्लाई करना है सिंथेटिक डिवीजन में. उसमें कुछ अलग नहीं है. ठीक है. नाउ लेट अस रिप्लेस द न्यूमरेटर बाय द फैक्टर्स एंड द डिनोमिनेटर बाय देयर फैक्टर्स. फैक्टर्स से रिप्लेस कर देते हैं पहले. चलो ठीक है. तो लिखो नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस. ओके, तो आई रब दिस ऑफ. इसको मैं रब कर देता हूं. लेट्स रिप्लेस बाय द फैक्टर्स. ठीक है, ये तो क्वेश्चन था. चलो ठीक है, ये भी रब कर देता हूँ सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन. तो लिखो नेक्स्ट स्टेप. Therefore, L is equal to, write down, limit x is tending towards -2. What are the factors of the numerator? लिखो x plus 2 into x square minus x plus 6 अपॉन डिनोमिनेटर के फैक्टर्स क्या है? तो x plus 2 into x square minus 2x plus 1. ठीक है, close the bracket. We have replaced by the factors. Okay, now as we all know कि common factor cancel हो जाता है. Reason, let's write down, as x is tending towards -2, therefore x is not equal to -2, therefore x plus 2 will never equal 0. जब x वैल्यू -2 लेगा ही नहीं, तो x plus 2 तो कभी 0 होगा ही नहीं ना. अगर x वैल्यू -2 लेता तो -2 plus 2 0 आता ना. That is what the reason says. Okay, now
Let's simplify it ahead. Okay. Now let's first write down what is left out. Cancel होने के बाद. So limit x is tending towards -2, x square minus x plus 6 upon x square minus 2x plus 1. Okay, now just check and tell me, can we put x is equal to -2 in this? I'm just asking. Yes. I'm not telling you. Yes. Can you tell me why we can put x is equal to -2? क्यों डाल सकते हैं? कैसे मालूम पड़ा आपको? Not in 0/0 form. Yes, exactly. Very good. As you can observe, denominator 0 नहीं हो रहा है. Perfect. As the denominator is not becoming 0, बिंदा साहब लिमिट डाल दो. Numerator 0 हो रहा है, no problem. See, we know 0 upon a non-zero number. Okay, before you substitute, देख लो आप. अगर न्यूमरेटर 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर नॉन जीरो है, तो कोई भी तकलीफ नहीं है, आंसर 0 हो जाएगा. हाँ, अगर न्यूमरेटर नॉन जीरो है और डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो देन यू कैन नॉट सब्स्टिट्यूट द लिमिट. हाँ, अगर न्यूमरेटर भी 0 है, डिनोमिनेटर भी 0 है, देन ऑल्सो यू कैन नॉट सब्स्टिट्यूट द लिमिट. हाँ, दोनों नॉन जीरो है. न्यूमरेटर इज ऑल्सो नॉन जीरो, डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो, देन यू कैन सब्स्टिट्यूट द लिमिट. ठीक है ना? तो अब ऐसा लिख लो एट द टॉप ऑफ द पेज, नोट डाउन. न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर नॉन जीरो है, NZ नॉन जीरो. न्यूमरेटर 0 है, ऐसे टॉप ऑफ द पेज पे लिख लो आप. न्यूमरेटर 0, डिनोमिनेटर नॉन जीरो, सब्स्टिट्यूट द लिमिट. ओके, ऐसा लिखो आप. राइट डाउन दिस रिप्रेजेंटेशन दैट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड फॉर योर रेफरेंस. न्यूमरेटर नॉन जीरो है, डिनोमिनेटर 0 है, पुट अ क्रॉस, मींस यू कैन सब्स्टिट्यूट द लिमिट. दोनों 0 है तो पुट अ क्रॉस. दोनों नॉन जीरो है, पुट अ टिक. टिक मींस सब्स्टिट्यूट द लिमिट एंड क्रॉस मींस डोंट सब्स्टिट्यूट द लिमिट. ये इंपॉर्टेंट है. दिस शुड बी अंडरस्टूड टू एवरीवन. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. Yes, sir. ओके, चलो. तो अभी आप x इज इक्वल टू -2 डालो एंड फिनिश ऑफ द प्रॉब्लम. दिस इज फॉर योर रेफरेंस. ये आप नोटबुक में ऊपर लिख लेना. ये दोनों केस में वैल्यू डाल सकते हैं, इसमें नहीं डाल सकते. चलो, आई रब दिस ऑफ. नाउ पुट x इज इक्वल टू -2. कैलकुलेट एंड टेल मी. फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहा है. अगर फ्रैक्शन रिड्यूस हो रहा है तो फ्रैक्शन को रिड्यूस करो. डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. 4/3. 4/3. ओके, चलो लेट्स सी. एवरीवन 4/3. Yes, sir. ओके, चलो. ओके, वेरी गुड. 4/3. चलो ठीक है. तो लेट्स सी. -2 का स्क्वायर तो ये 4. ठीक है. 4 + 2 6, 6 + 6, न्यूमरेटर इज 12. 4. ठीक है, ये 4 हो जाएगा. 4 प्लस ये 4 8. 8 + 1 9, 12/9. तो आंसर इज 4/3. प्रॉब्लम इज ओवर. तो फैक्टराइजेशन मेथड प्रॉब्लम्स इज टू बी डन इन सेम मैनर. आप कोई भी प्रॉब्लम ले लो. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो भी मैंने आपको बता दिया. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट वाला प्रॉब्लम है वो भी बता दिया. अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो सिंथेटिक मेथड वाला भी प्रॉब्लम आपको बता दिया. So all the cases are sorted out in factorization. सारे problems are to be done in this way only.